A very warm welcome to all the students of class 11. Today I am going to start chapter 15, Plant Growth and Development. Plant growth regulators, PGRs, are small, simple molecules of diverse composition. These are also known as plant growth substances, plant hormones or phytohormones. Plant growth regulators क्या होते हैं? These are the molecules which are helping plants to grow. Now these are being called as by various names such as plant growth substances, plant hormones or phytohormones. There are various types of plant growth substances or plant hormones, that is indole 3-acetic acid and abscisic acid, gibberellic acid, ethylene. These all are the phytohormones which helps in the growth of the plants. Now PGRs can be classified into two groups. First, plant growth promoters. There are two types of PGRs, one that helps in plant growth and other in which inhibits the growth of the plants. Plant growth promoters examples are auxins, gibberellins, cytokinins. Involved in growth promoting activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation, trophic growth, flowering, fruiting and seed formation. These are all the functions of these hormones. Now second type of PGRs are plant growth inhibitors. Example of these are abscisic acid and ethylene. Important role in plant responses to wounds and stresses of biotic and abiotic origin. Also involved in growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. ठीक है, तो ये जो है वो प्लांट्स को, जैसे अगर प्लांट्स को चाहे बायोटिक फैक्टर्स की वजह से चाहे किसी एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से किसी तरह का स्ट्रेस हो रहा है या वुंड हो रहा है, तो ऐसे में ये इनहिबिटर्स जो है वो सिक्रीट होते हैं. इसके अलावा ग्रोथ की इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ में जैसे सीड डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है, जर्मिनेट नहीं करता है, या फिर एब्सिशन में, इन सब में ये हेल्प कर लेते हैं. Ethylene gaseous PGR could fit either of the groups but is largely an inhibitor of growth activities. So ethylene is the only phytohormone which is gaseous in nature. Otherwise all the hormones are not gases, and it is mainly considered as inhibitor also, but sometimes it helps in the growth of the plants also. Now the discovery of plant growth regulators. The discovery of 5 major groups of PGRs was accidental. It started with the observation by Charles Darwin and his son Francis Darwin, when they observed that the coleoptiles of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source, phototropism. तो ये जो PGR में से एक PGR है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीन, इसकी जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, एंड इट वॉज डन बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन. और उन्होंने क्या देखा कि कोलियोप्टाइल जो कि कवरिंग होती है प्लांट के ऊपर शूट टिप पर, वो जो है कैनरी ग्रास में जब उन्होंने देखा कि उसकी तरफ लाइट पड़ रही थी एक डायरेक्शन से, तो उस लाइट की तरफ वो बेंड हो गया, जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं. बाय सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वॉज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वॉज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉजेज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल. तो बहुत सा एक्सपेरिमेंट इसके बाद किया गया, तो उन्होंने देखा कि जो टिप है कोलियोटाइप का, वहाँ कुछ तो ऐसा चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से पूरा का पूरा कोलियोप्टाइल जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है. ऑक्सीन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द शूट अपेक्स एंड इट मूव्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड. सपोर्ट लाइट इज कमिंग फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, सो द सेल्स ग्रोइंग टू द अपोजिट ऑफ लाइट ग्रोज लॉन्गर एंड द सेल्स फेसिंग द साइड ऑफ द लाइट रिमेन्स शॉर्टर. So these plants bend towards the light. जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि जो साइड ऑफ द टिप प्लांट की जो लाइट की तरफ जो ग्रो करती है उसकी सेल की साइज छोटी रहती है, जो लाइट से अवे ग्रो करती है उसकी सेल की साइज जो है वो बड़ी हो जाती है. और जो ये टिप वाला पोर्शन होता है यहीं पे ऑक्सीन का प्रोडक्शन होता है, और ये ऑक्सीन जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है, और जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये जो है वो पूरा जो टिप है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है. इफ यू विल कीप अ प्लांट इन डार्क एंड प्रोवाइड लाइट सोर्स फ्रॉम सिंगल डायरेक्शन, द प्लांट विल बेंड एट दैट साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म. तो ये एक्सपेरिमेंट हम डार्क में रख के कर सकते हैं कि प्लांट को एक डार्क प्लेस पे रख दें और एक तरफ से लाइट इल्यूमिनेट करें,
तो जिस साइड से लाइट सोर्स आएगा उस साइड प्लांट जो है वो बेंड कर जाएगा। इसी को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो पॉजिटिव क्या है, जब लाइट की तरफ मूवमेंट हो प्लांट का, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है और ये ऑक्सीन हार्मोन की वजह से होती है। FW आइसोलेटेड ऑक्सीन फ्रॉम द टिप ऑफ ओट्स अवेना स्पीशीज सीडलिंग्स, ही डिड अवेना कर्वेचर टेस्ट। तो FW वेंट ने ये ऑक्सीन जो है वो ओट से सबसे पहले निकाला था। उससे पहले ह्यूमन यूरिन से भी ऑक्सीन सबसे पहली बार मिला था, और इसको करने के लिए उन्होंने अवेना कर्वेचर टेस्ट भी किया था। इस टेस्ट में क्या करते हैं कि ओट की सीडलिंग लेते हैं और जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो बेंड कर जाता है। तो बेंड करने के बाद क्या करते हैं कि जो उसका टॉप का पोर्शन है उसको कट कर देते हैं। अब जब टॉप का पोर्शन कट गया तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो प्लांट अब लाइट की तरफ बेंड नहीं करेगा। अब ये जो कटा हुआ टिप है इसको अगार जल में रखते हैं ताकि प्लांट टिप से जो ऑक्सीजन है वो अगार जल में आ जाए, और इसके बाद इस अगार जेल को उस कटिंग शूट पे एडहेसिव कर देते हैं। और इसको अटैच करने के बाद क्या होता है, वापस से जब हम लाइट उस प्लांट के ऊपर डालते हैं तो फिर से प्लांट जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। दिस इज अवेना कर्वेचर टेस्ट। Bucking fully seedling disease of rice seedling was caused by a fungal pathogen, Gibberella fusariae. E. Kurosawa 1926 reported the appearance of symptoms of the disease in rice seedlings when they treated with sterile filtrates of the fungus. The active substances were later identified as gibberellic acid. तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो सबसे पहले राइस सीडलिंग के अंदर मिला था। यहाँ पे फंगस के ग्रो होने की वजह से फार्मर्स को ऐसा लगता था कि जैसे राइस के सीडलिंग जो है ग्रो कर गए हैं, और इस फंगस की वजह से जो राइस का जो स्टॉक होता था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। तो ई कुरोसावा ने सबसे पहले जिब्रेलिन हार्मोन को, मतलब उस प्लांट से वो सब्सटेंस निकाला था जिसमें कि बाद में पता चला कि जो एक्टिव सब्सटेंस है वो था जिब्रेलिक एसिड। F. Skoog and his co-workers observed that from the internodal segments of tobacco stems, the callus is the undifferentiated mass of cells proliferated only if, in addition to oxygens, the nutrient medium was supplemented with one of the following extracts of vascular tissues, yeast extract, coconut milk और DNA। तो कैलस के अंदर वो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल रहता है, मतलब आप उसमें रूट एंड शूट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर रूट की ग्रोथ करानी है तो ऑक्सीजन डालना पड़ता है, और शूट की अगर ग्रोथ करानी है तो इसमें हम साइटोकाइनिन जो है वो ऐड करते हैं। मिलर एट al 1955 later identified and crystallized the cytokinesis promoting active substance and termed it kinetin। ठीक है। In mid 1960s, 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors: inhibitor B, abscission second, and dormine. Later, all three were proved to be chemically identical. It was named abscisic acid. H.S. Cousins 1910 confirmed the release of a volatile substance from ripened orange that hastened the ripening of stored unripened bananas. Later, this volatile substance was identified as ethylene, a gaseous plant growth regulator। एकमात्र सिंगल जो हार्मोन है फाइटो हार्मोन जो कि गैशियस इन नेचर है वो है इथाइलिन, और इथाइलिन का जो डिस्कवरी है एच.एस. कजिन नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने किया है। और ये क्या है, ये राइपेंड ऑरेंज से उन्होंने डिस्कवर किया कि राइपेंड ऑरेंज के बाद जब कच्चे बनाना रखे हुए थे तो उस राइपेंड हार्मोन ऑरेंजेस के कंपनी में ये जो अनराइपेंड बनानास है वो भी बहुत फास्ट जो है उनकी राइपनिंग हो गई। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फर्स्ट है ऑक्सीजन। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, नेचुरल ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सीजन है NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था, और 2 तरीके के ऑक्सीजन होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। एक्सटेंसिव यूज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्लावरिंग के उसमें
बिजनेस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस हार्मोन का। इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, अगर स्टेम है, आपने किसी प्लांट का स्टेम काट दिया है और अगर आप उसमें रूट ग्रो कराना है तो आप ऑक्सिन का यूज़ कर सकते हैं। प्रमोट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल पाइनएप्पल्स, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग के लिए कौन सा फाइटोहार्मोन यूज होता है, तो योर आंसर विल बी ऑक्सिन्स। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस बट प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट, तो फ्रूट और यंग जो फ्रूट होते हैं उनको और लीफ को गिरने से बचाता है अर्ली स्टेज पे, और अगर लीव्स ओल्डर हो गई या फ्रूट ओल्डर हो गए, पक गए हैं, तो उनको ये गिराने में भी हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंस, ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, जब शूट एपेक्स मेरिस्टेम जब तक फंक्शनल रहता है तब तक वो लेटरल बड को ग्रो नहीं करने देता और लेटरल बड से ही लेटरल ब्रांचेस ग्रो करती हैं। तो जब तक ऑक्सिन का सिंथेसिस होता रहेगा तब तक जो है वो कभी भी लेटरल बड्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप उस पार्ट ऑफ द शूट को कट कर दे तो जब शूट कट हो जाएगा तो ऑक्सिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब जो लेटरल बड्स हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं ताकि लेटरल जो ब्रांचेस है वो ग्रो कर सके। इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस, और ऑक्सिन जो है वो इसमें हेल्प करता है। एपिकल बड्स रिमूव्ड इन टी प्लांटेशन हेज मेकिंग, तो टी के अंदर हमें क्योंकि ज़्यादा झाड़ियों को घना करना रहता है तो इसमें भी हम यही सेम जो प्रोसेस है उसको यूज़ करते हैं। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल टोमेटोज, सो यू नो पार्थेनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना गैमिट के फ्यूजन से ही फ्रूट बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी, तो इसका एग्जाम्पल है टोमेटो। हर्बिसाइड 2,4-D kills dicot weeds used to prepare weed free lawns, तो हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, जो हर्ब्स को जो किल करते हैं, तो ये जो 2,4-D होता है वो डाइकॉट वीड्स को ही किल करता है, और अगर आपको लॉन विदाउट वीड्स चाहिए तो इसका हम लोग यूज करते हैं। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। नेक्स्ट फाइटोहार्मोन है जिब्रेलिन्स, ग्रोथ हार्मोन ऑफ प्लांट्स, एंटागोनिस्ट टू एबीए, तो एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड का जस्ट उल्टा है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है और ये क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। डिस्कवरी, बकेन फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस कॉज्ड बाय फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई एंड प्रोड्यूस एक्टिव सब्सटेंसेस कॉल्ड एज जिब्रेलिन्स, इट वाज रिपोर्टेड बाय ई कुरोसावा। More than 100 gibberellins are extracted from fungi and plants, example GA1, GA2, GA3 and like it is. First discovered gibberellin was GA3 and it was extensively studied. जो पहला जिब्रेलिन जो डिस्कवर हुआ था वो था GA3 और सबसे ज़्यादा वाइडली स्टडी भी इसी को किया गया है। Cause increase in length of grape stalks, cause apples to elongate, delay senescence, so fruit can be left on tree, speed up malting in brewing industry, increase length of sugarcane stems so yield is increased by 20 tons per acre, spraying on juvenile conifers hasten maturity leading to early seed production, promote bolting internode elongation prior to flowering। ये सब जिब्रेलिन्स का फंक्शन है जो कि लर्न करना है। जो थर्ड फाइटोहार्मोन है दैट इज साइटोकाइनेस, स्कूग एंड मिलर क्रिस्टलाइज्ड काइनेटीन अ साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन प्रमोटिंग सब्सटेंस, involves in root formation in callus along with auxin which promotes root formation, kinetin, modifying adenine that is nitrogenous base first discovered from autoclaved herring sperm DNA, herring जो एक फिश है। काइनेटिन डज नॉट नेचुरली ऑकर इन प्लांट्स, क्योंकि ये फिश के डीएनए में प्रेजेंट होता है, स्पर्म के डीएनए में, तो इसीलिए ये प्लांट्स में नेचुरली नहीं मिलता है। जियाटिन ऑकर्स नेचुरली इन कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, जो जियाटिन जो हार्मोन है साइटोकाइनिन एक तरह का है, ये नेचुरली कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क में मिलता है। सिंथेसाइज्ड इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, एग्जाम्पल रूट अपेक्स शूट बड्स यंग फ्रूट्स, मतलब जहाँ पे भी प्लांट में बहुत फास्ट सेल डिवीजन होगा वहाँ पे साइटोकाइनिन आपको मिल जाएगा। प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट, प्रोड्यूसेस ग्रोथ एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, ठीक है, नए नए लीव्स का प्रोडक्शन करना, तो जितना लीव्स होगा उतने क्लोरोप्लास्ट होंगे, लेटरल शूट ये सब में हेल्प करता है। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, प्रमोट
न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, यानी न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, उसमें ये हेल्प करता है। हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, ठीक है, ये लीफ सेनेसेंस को रोकता है। इथाइलिन सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्कवर्ड फंक्शन वाइज हार्मोन है ये, फाइटो हार्मोन। Cousins confirmed release of volatile substance from ripened oranges that hasten the ripening of bananas. I have already told you this. Synthesized in large amounts by tissues undergoing senescence. Fruit ripening hormone भी इथाइलिन को कहते हैं। Triple response horizontal growth swelling of axis apical hook formation during seed germination. अगर सीड जर्मिनेट कर रहा है तो ये उसमें हेल्प करता है उसको। Promote senescence and abscission in plant organs. राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब फ्रूट्स राइपन करने लगते हैं तो उस समय ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो इंक्रीज कर देता है। ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, induces flowering in mango, एथिपॉन एक्वा सॉल्यूशन हैसेंस फ्रूट राइपनिंग, मतलब आपने देखा होगा कई बार हम लोग फ्रूट्स के ऊपर ये सब डालते हैं ताकि फ्रूट्स जल्दी राइपन कर जाएं। एक्सेलरेट्स एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर्स। अब सबसे लास्ट जो फाइटो हार्मोन है दैट इज एब्सिसिक एसिड, इट इज रिलीज इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, जब प्लांट स्ट्रेस में होते हैं तब एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है। इनहिबिटर बी एब्सिशन सेकेंड एंड डॉर्मिन, role in regulating abscission and dormancy, inhibitor of growth and metabolism, inhibits seed germination, stimulates closure of stomata, stress hormone, seed development, maturation and dormancy. So that's all for today. I hope you have understood this topic very well. Thank you.